Hello children, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourselves. Today we are going to proceed to our English Standard 8th English Junction chapter number 7, that is against the odds. So before moving on to the chapter, I would like to first explain you the objectives for learning this chapter. So our first objective is it is why you are learning this chapter, because to recognize the features of a first person narrative. What do you mean by first person narrative, you will ask me. So first I'll explain you who is first person narrative. Means a first person narrative is a narration by one character. मीन्स एक ही कैरेक्टर होता है पूरे चैप्टर में जो पूरी स्टोरी नरेट करता है. एंड इट नरेट्स व्हाट. This character talks about himself, herself और shares events that he she experiences. वो खुद के बारे में ही सिर्फ बताता है और उनके साथ जो इवेंट्स हुए हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में. सो in such a narration, we see the point of view of only the narrator, and hence we are limited in our opinion with only what the character shares. इसमें हम अपने ओपिनियन कुछ नहीं शेयर कर सकते. वो जो नरेटर जो होता है वो अपने ओपिनियंस शेयर करता है और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा चैप्टर देखते हैं. सो आवर ओपिनियन इज़ वेरी लिमिटेड इन दैट एंड वी डिपेंड ऑन व्हाट द कैरेक्टर शेयर्स. Now, the second objective for learning this chapter is to make a character sketch. देखो इस चैप्टर में you can make a character sketch by knowing all the information about the character who is narrating the experiences. The next objective is to connect the title to the text and note its relevance. Means आप इसमें वो टेक्स्ट को वो टाइटल से कनेक्ट कर सकते हैं कि वाई नरेटर ने उस चैप्टर का नाम ऐसा दिया हुआ है. सो ऑन रीडिंग द होल टेक्स्ट यू कैन कम टू नो द कनेक्शन बिटवीन द टाइटल एंड द टेक्स्ट. नाउ डियर चिल्ड्रन, I would like to show you a picture. Can you recognize this picture? Who is she? I'll show you one more picture. Now can you recognize who is she? Yes, she is Arunima Sinha. So today we are going to learn about her. This chapter is related to this lady, how her experiences she has shared in the chapter, that way. So before moving on to the chapter, I will give you a short information about her. She is Arunima Sinha and she is an Indian mountain climber and sportswoman. वो एक माउंटेन क्लाइंबर है और एक स्पोर्ट्स वूमेन भी है. शी इज़ अ 7 टाइम इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर. वो 7 टाइम इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर भी है, माउंटेनियर भी है एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्यूटी? एम्प्यूटी मीन्स whose आर्म और लेग इज़ आर्टिफिशियल, उनको कहते हैं एम्प्यूटी. एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जो माउंट एवरेस्ट उन्होंने चढ़ के ऊपर झंडा लहराया था. और अदर माउंटेन ऑल्सो शी क्लाइम्ड. द नेम ऑफ द माउंटेन्स आर गिवन ओवर हियर. माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, माउंट एल्ब्रस इन रशिया, माउंट कोजिकोस्को इन ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकोनकाग्वा इन साउथ अमेरिका एंड कार्टेंस पिरामिड इन इंडोनेशिया एंड माउंट विंसन. ये सारे माउंटेन्स पे भी वो चढ़ी थी. देन हर ब्रीफ समरी इज बीन गिवन ओवर हियर विद द फोटो. दिस इज अरुणिमा सिन्हा इन 2014. नाउ शी वॉज born on 20th July 1989. Her age is 31 and she belongs to Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh, India. Her occupation is she is a motivational speaker. मतलब उनकी स्पीच सुन के लोगों को मोटिवेशन मिलता है. She is also an Indian mountaineer, former 7-time volleyball national player and her spouse means उनके हस्बैंड का नाम है गौरव सिंह.
And which award she got, I'd like to tell you the awards which she got. First award she got Padma Shri award in 2015. Then the second award was Tenzing Norgay National Adventure Award in 2015. Then First Lady Award in 2016. Then Malala Award, Yash Bharti Award, Rani Lakshmibai Award, Mati Ratna Samman by Shahid Soda Sanstha. So you can come to know from this that she won many awards. Okay. So she is a very brave lady, and what all happened with her and what were her experiences and the events. Now I would like to begin with the chapter. In that it is given how she won the awards, how she got amputed, and what all things happened with her, and what all difficulties she faced is given in the chapter. So let's begin with our chapter number 7, that is against the odds. Now first of all, here one warm up exercise is being given. Now you can see the picture here of the mountain. Now it is not the mountain we conquer but ourselves. Now this line is being spoken by some person. He says कि it is not the mountain, मतलब हम माउंटेन चढ़ते हैं तो वो हम कॉन्कर नहीं करते, बट हम हमारे डर को ourselves खुद को कॉन्कर करते हैं कि कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट वी हैव टू डू आवर वर्क. These words were spoken by Sir Edmund Hillary on 29th May 1953. ये वर्ड्स किसने कहे थे? सर एडमंड हिलेरी ने कहे थे ऑन 29th May 1953. Hillary and Nepalese Sherpa mountaineer Tenzing Norgay became the first climber to reach the summit of Mount Everest. ये जो थे वो सबसे पहले पहुँचे थे माउंट एवरेस्ट पे. Now here some questions are being asked to you कि what do you think this quote means, मतलब इस quote का meaning क्या है, which I explained you. The next is, do you think attitude and confidence is something you develop as you grow up? How? क्या आपको लगता है कि आप में कुछ एटीट्यूड आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं? Yes, that is true. Now, has there ever been a time in your life when your positive attitude and determination helped you achieve something difficult? आप इसके ऊपर से आप ये सोच सकते हो, आप थिंक लाइक दैट कि कभी ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आया है जब आपको किसी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, बट देन ऑल्सो विथ पॉजिटिव एटीट्यूड आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया. Now dear children, after completing this warm up exercise, we are going to begin with our chapter. So now let's start our chapter. First of all, the name of the chapter is Against the Odds. What do you mean by against the odds? It means you are trying to do or achieve something that seems impossible. जो impossible चीज़ होती है वो हमें करनी होती है. You are trying to do that impossible thing. That is the meaning of against the odds. Now let's begin with the chapter. Arunima Sinha made a decision. शी वुड क्लाइम माउंट एवरेस्ट. उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी. इन 2013 शी डिड एग्जैक्टली दैट, बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी एंड द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी टू अचीव दिस फीट. नाउ 2013 में उन्होंने ये कर दिखाया. बाय बिकमिंग क्या बन गए वो? वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी. फीमेल एम्प्यूटी मीन्स, एम्प्यूटी का मतलब है अ पर्सन who has had an arm or a leg cut off in a surgical operation. जिनके आर्म या लेग कट हो चुके हो उसे कहते हैं एम्प्यूटी. वो एम्प्यूटी होकर भी वो फर्स्ट फीमेल, वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल बनी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी. एंड द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी, इंडिया की भी वो फर्स्ट एम्प्यूटी थी टू अचीव दिस फीट. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय फीट? इट मीन्स समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल या करेज दिखाता है. कुछ ऐसी चीज़ आप कर दिखाए जिसमें आपकी स्किल या करेज आपका दिखता है. देन इन 2015 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड.
नाउ इन स्टार्टिंग ओनली आई टोल्ड यू कि 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये जो अवार्ड है वो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन मीन्स अ रेगुलर पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स और द पुलिस, पुलिस का मेंबर नहीं है, बट देन ऑल्सो शी गॉट दैट अवार्ड। What makes her achievement extraordinary is that she lost her leg in 2011 when she was thrown off a train by robbers for resisting them when they tried to steal her chain। ये अचीवमेंट उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है? इन 2013 वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, बट वाई इज़ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी? बिकॉज उनका लेग जो था वो कट चुका था 2011 में। कैसे कटा था? व्हेन शी वॉज, उनको जो चोर थे उन्होंने ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंक दिया था। जब वो रेसिस्टिंग मीन्स वॉट, ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, जब वो चोर उनकी चेन खींच रहे थे तो उनसे उसको बचाते बचाते तब वो चोर ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया था। तो दैट टाइम शी लॉस्ट हर लेग। 2 years लेटर शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और 2011 में ये हुआ, बट देन ऑल्सो 2013 में 2 साल बाद शी वॉज कहाँ थे वो टॉलेस्ट माउंटेन पे थी इन द वर्ल्ड में, जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है वहाँ पे वो चढ़ चुकी थी। Read on to find out how she showed great courage and determination to rebuild her life after her unfortunate accident। उनके साथ ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। देन ऑल्सो उन्होंने अपना करेज और डिटर्मिनेशन कैसे रीबिल्ड किया, कैसे वापस पाया और लाइफ में कुछ कर दिखाया। इट इज़ गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। नाउ हियर, lying on the hospital bed, I was very weak। Now she started narrating her story। Okay, तो शी इज़ टेलिंग कि वो हॉस्पिटल के बेड पे थी एंड बहुत ही वीकनेस हो गई थी, उनकी बहुत वीकनेस फील कर रही थी। आई फेल्ट हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स कोई उसको मदद करने वाला नहीं था, कुछ नहीं। सो हेल्पलेस मीनिंग इज़ गिवन, इट मीन्स अनेबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, खुद को वो नहीं संभाल पा रही थी। ओके, देन वॉट हैपेंड, माई लेफ्ट लेग वॉज एम्प्यूटेड, मतलब उनका जो लेफ्ट लेग था वो कट चुका था। अ रॉड वॉज इंसर्टेड इन माई राइट लेग, लेफ्ट लेग कट चुका था और राइट लेग में भी अंदर रॉड डाला हुआ था। फ्रॉम नी टू एंकल, घुटनों से नीचे एंकल तक वो रॉड डाला हुआ था। टू होल्ड द ब्रोकन बोन्स टुगेदर, रॉड क्यों डालते हैं? जो बोन्स टूट चुके होते हैं उनको साथ में जोड़ने के लिए रॉड डाला जाता है। सो लेफ्ट लेग तो ऑलरेडी कट चुका था एंड राइट लेग में भी रॉड डाला हुआ था। I needed to start afresh। Now what do you mean by afresh? Here the meaning is given, it means start again, especially with new ideas। क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी, सो उन्हें फिर से शुरू करना था। I thought about the most impossible dream, और तब उन्होंने क्या सोचा? सबसे जो इम्पॉसिबल चीज़ है that I will do। I could set for myself, मतलब खुद के लिए ऐसी इम्पॉसिबल ड्रीम क्रिएट करना कि पॉसिबल नहीं है बट फिर भी वो कर दिखाना चाहती थी। आई डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तब उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि शी विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट। नाउ आई होप डियर चिल्ड्रन दिस पेज इज अंडरस्टूड टू यू। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस so that the idea will be more clear for you। So my first question is, which decision did Arunima Sinha make? Can anybody tell me? Yes, she made the decision to climb Mount Everest. Very good, correct. Now the second question is, which award did she get in 2015? उन्हें कौन सा award मिला? I repeat my question, which award did she get in 2015? Yes, she got the Padma Shri award in 2015. The third question is, how did she lost her leg? कैसे उनका leg था वो टूट गया था? How did she lost her leg? Yes, very good. She lost her leg in 2011
when she was thrown off a train by robbers for resisting them when they tried to steal her chain. Yes. Now the next question is, where was the rod inserted in her leg? उनके लेग में जो रॉड इंसर्ट किया था वो कहाँ इंसर्ट किया था? Yes, very good. The rod was inserted in her right leg from knee to ankle. Now my last question is, what was her decision for herself? उन्होंने खुद के लिए क्या decision लिया? So can anybody tell me? Yes, her decision was for herself was to climb Mount Everest, the most impossible dream she started. Now children, let's move on to the next page and continue our chapter. So when I tried to tell my doctors about my plan, there were two reactions. I was either laughed at or was told that the accident had adversely affected my mental health. So dear children, she is telling कि जब उन्होंने डॉक्टर को अपना प्लान बताने, जब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि शी इज़ गोइंग टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फिर उन्होंने अपना वो प्लान डॉक्टर्स को बताया, तब दो रिएक्शंस उनको मिले. क्या था? वन वॉज कि उनकी तरफ सारे लोग हंसने लगे. दे ऑल वेयर लाफिंग एट हर कि ये पैर कट चुका है, और देन ऑल्सो शी इज़ थिंकिंग कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी तो पागल हो गई है क्या. और दूसरा क्या रिएक्शन था कि वॉज टोल्ड दैट द एक्सीडेंट हैड एडवर्सली अफेक्टेड हर मेंटल हेल्थ, मतलब इनका दिमाग कुछ घूम गया है और ये एक्सीडेंट के वजह से कुछ दिमाग पे खराब असर हुई है, ऐसे लोग बोलते थे. देन यूजुअली एम्प्यूटी पेशेंट्स टेक मंथ्स और इवन ईयर्स टू गेट एक्स्टम्ड टू देयर प्रोस्थेटिक लिम्स. मीन्स जो एम्प्यूटी पेशेंट्स जो होते हैं उनको कभी कभार कुछ महीने लगते हैं ठीक होने में, किसी को कुछ साल भी लग जाते हैं ठीक होने में. एंड टू गेट एक्स्टम मीन्स यूज टू, उस लेग से यूज टू होने में उनको कहीं बहुत टाइम लग जाता है. एंड टू देयर प्रोस्थेटिक मीन्स व्हाट? एन आर्टिफिशियल पार्ट, जो उनके जो भी आर्म कटा हो या लेग कटा हो और आर्टिफिशियल उनको जो फिट करते हैं उससे यूज टू होने में उनको कुछ वक्त लग जाता है. बट वॉट हैपन्ड विथ हर? आई वॉकड इन 2 days. बट ये जो थी अरुणिमा सिन्हा, वो 2 दिन में ही उससे यूज टू हो गई थी और चलने लगी थी. द माइंड होल्ड्स ट्रेमेंडस कंट्रोल ओवर द बॉडी. एक्चुअल में डियर चिल्ड्रन क्या होता है कि माइंड अपना स्ट्रॉन्ग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. वो अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे से, माइंड अगर एकदम ठीक हो तो वेरी ग्रेट वे में यू कैन कंट्रोल योर बॉडी. देन व्हाट हैपन? वंस आई डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, आई लेट नथिंग गेट इन माई वे. एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया कि शी वॉज गोइंग टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो कुछ उनके रास्ते में नहीं आ सकता था, कुछ स्टॉप नहीं कर सकता था उनको ये करने से. देन व्हाट हैपन? एज सुन एज आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जैसे उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, आई वेंट टू सी बचिंद्री पाल. कहाँ गए वो? बचिंद्री पाल से मिलने. हु वॉज बचिंद्री पाल? द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था. देन अपार्ट फ्रॉम माई इमीडिएट फैमिली, शी वॉज द ओनली पर्सन हु एनकरेज मी. मतलब उनको अपने फैमिली मेम्बर्स का तो सपोर्ट मिला था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे लोग उनको इग्नोर करते थे और हंसते थे उन पे. बट शी वॉज द ओनली पर्सन, बचिंद्री पाल वही एक पर्सन थी जिन्होंने उन्हें एनकरेज किया. But she didn't sugarcoat it either. But sugarcoat means what? The meaning is given over here to make something sound better. मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, मीठी पट्टी मारना, ऐसे. बट उन्होंने ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करके उनका दिल नहीं बहलाया. बट what she said, अरुणिमा, in this condition you have made such a big decision. उन्होंने अरुणिमा को कहा कि अरुणिमा तुमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है ऐसी कंडीशन में. This shows that you have already conquered your inner Everest. मतलब इससे आप ये बताता है कि आपके अंदर का जो एवरेस्ट है, अंदर का जो करेज है, वो आपने कॉन्कर कर लिया है. Now you need to climb the mountain only to show the world
what you are made of. अब अंदर का एवरेस्ट आपने क्लाइंब कर लिया है, अब खाली आपको माउंटेन क्लाइंब करके लोगों को बताना है कि तुम में क्या पोटेंशियलिटी है, क्या एफर्ट है तुम में कि तुम जो डिसीजन ले रही हो वो तुम कर दिखाओगी. So after that I did a basic course from the Nehru Institute of Mountaineering, the best school of its kind in Asia. Then what happened, उन्होंने कहाँ अपना कोर्स शुरू किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है एक इंस्टीट्यूट, उसमें वो सबसे बेस्ट स्कूल है एशिया की ऑफ इट्स काइंड ये टाइप के कोर्स करने के लिए. दिस वॉज फॉलोड बाई 18 months ऑफ स्ट्रनियस ट्रेनिंग. और ये इसमें 18 months की बहुत ही स्ट्रनियस मीन्स वॉट, हियर इट इज़ गिवन द मीनिंग, इट मीन्स नीडिंग ग्रेट एफर्ट एंड एनर्जी. इसमें बहुत एफर्ट लगता है और एनर्जी लगती है ये ट्रेनिंग लेने में. आई क्लाइंब्ड स्मॉलर बट नो लेस डेंजरस माउंटेन्स. फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छोटे माउंटेन से स्टार्ट किया, बट वो बहुत ही छोटे थे, बट दे वेर वेरी डेंजरस माउंटेन्स एंड हैड अ couple of near death experience. What do you mean by near death experience? Dangerous situations भी आई where she almost died. That is called near death. जिसमें डेथ से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस होते थे वैसे उनको एक्सपीरियंस हुए. एंड underwent spirit crushing pain. What do you mean by spirit crushing pain? It means pain that was so intense that it almost destroyed her confidence. इतना पेन उनको होता था लेग में, बट देन ऑल्सो उसका कॉन्फिडेंस हिला नहीं. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ द एम्प्यूटेड लेग. ये आर्टिफिशियल लेग फिट किया हुआ और इस लेग में उन्हें रॉड डाला हुआ था. आई सपोर्टेड माई सेल्फ विथ अ ग्रांट फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. फिर उन्होंने खुद को कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है. ग्रांट मीन्स वॉट, अ सम ऑफ मनी that is given by an organization to be used for a particular purpose. तो उन्हें किसने सपोर्ट किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने उन्हें ये पैसे दिए उनको आगे ट्रेनिंग करने के लिए. देन उसके बाद इतने पैसे तो इनफ नहीं थे. देन व्हाट हैपेंड, देन टाटा स्टील प्रोवाइडेड मी विथ अ जनरस स्पॉन्सरशिप that allowed me to focus completely on the impossible task that lay ahead. फिर उन्हें किसने स्पॉन्सरशिप दी, स्पॉन्सरशिप मीन्स वो अ सम ऑफ मनी विच इज़ गिवन बाय अ कंपनी दैट कैन बी यूज टू पे फॉर समथिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए ये दी जाती है. तो उन्हें टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया एंड इस वजह से उनका पूरा फोकस उनके इम्पॉसिबल टास्क पे हो गया जो उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया था, फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. देन व्हाट हैपन, माई प्रोस्थेटिक लिम्ब क्रिएटेड सम यूनिक प्रॉब्लम्स. उनका जो ये लिम्ब था, प्रोस्थेटिक लिम्ब था, और उस वजह से उन्हें बहुत ही आर्टिफिशियल पार्ट जो उनके आर्टिफिशियल लेग फिट गया था उनके वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई. द एंकल एंड हील वुड कॉन्स्टेंटली स्विवेल एज आई ट्राइड टू क्लाइंब. और जैसे ही वो क्लाइंब करने की ट्राई करते, दैट टाइम व्हाट हैपन्ड, उनका जो एंकल और हील था, स्विवेल मीन्स टू टर्न और मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट, वो घूम जाता, जो फिटिंग किया हुआ था वो दूसरी तरफ घूम जाता था. देन व्हाट हैपन, एंड उस वजह से मेकिंग मी लूज माई ग्रिप ऑफन, और उस वजह से उनकी ग्रिप छूट जाती थी. देन व्हाट हैपन, माई राइट लेग वॉज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टील रॉड, और उनके राइट लेग में वो स्टील रॉड लगाया हुआ था. एनी प्रेशर ऑन दिस लेग कॉज्ड इंटेंस पेन, और उस लेग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता तो उससे उन्हें बहुत ही पेन होता. Now dear children, I hope you would have understood this second page which I explained. So now again I would like to ask you few questions so that your understanding would be more clear. So my first question is, which were the two reactions given by doctors on hearing her plan? Can anybody tell me which were the two reactions? Yes, the reactions were, yes, when she tried to tell the doctors about her plan, the two reactions were कि either she was laughed at or she was told that
the accident had adversely affected her mental health. Very good. Now my second question is, whom did she meet after releasing from the hospital? जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला उसके बाद whom did she meet? Yes, she went to meet Bachindri Pal. Correct. The third question is, from where did she do her basic course? Basic course उन्होंने कहाँ से किया? I would like to repeat my question. From where did she do her basic course? Yes, she did her basic course from the Nehru Institute of Mountaineering, the best school of its kind in Asia. Now, the next question is, how many months training was there? Can anybody tell me how many months training was there? Yes, training was for 18 months. My next question is, how did she support herself? उन्होंने खुद को कैसे support किया? Yes, it is given over here. She supported herself with a grant from the Nehru Institute of Mountaineering. I hope children the answers are also clear to you. My last question is, how was the unique problem created? What created the unique problem? Can anybody tell me? Yes, her prosthetic limb created some unique problem. I hope children you would have understood the 2 pages which I explained you. You read both the pages properly with the meanings which are given at the end of the page and watch the video properly. The next part I will explain you in the next video. Thank you dear children.